Ananya, I want you both to put up all the recordings and all the assignments that have been given till now in the blog and YouTube. Firstly, put up all the assignments in the blog. Don't leave any assignment, okay? First do the blog work and then do it in the YouTube also. Okay, so rewrite the code after removing errors, mark and identify the type of errors in the code. So tell me what are the errors? Ma'am, the first error is in the range function. Ma'am, here the range is given from 1 to 10, so 10 won't be included, and we want average of first 10 numbers, so it should be 11. Okay. And ma'am, then at in print statement. Next one is in print statement. Colon वहाँ पे नहीं दिया गया. It is semicolon. Is it not an error? Yes, ma'am, then it is also error. Yeah. So semicolon भी होना चाहिए. Okay. That cannot be colon. It has to be semicolon. And print statement में क्या problem है? Ma'am, parenthesis. Parenthesis. Okay. सिर्फ parenthesis और कुछ नहीं. Check it properly. सिर्फ parenthesis में ही problem है. प्रिंट का पी कैपिटल हो सकता है क्या? No, ma'am. Small p. Yeah, exactly. It has to be small p. Okay. So firstly small p होना चाहिए, फिर parenthesis आनी चाहिए, parenthesis में आपका average आना चाहिए. Okay. So how many errors were you able to find? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने एरर्स मिले? I said you the number of errors is twice the number of marks. Number of errors is twice the number of marks. First one is, as she has said, it is the range. ठीक है, 1,10 नहीं हो सकता, उसे 11 करना पड़ेगा और उसके बाद कोलोन देना पड़ेगा. सेकेंड वाला है प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट में दो एरर्स हैं, एक p स्मॉल होना चाहिए और दूसरा पैरेंथेसिस होना चाहिए. ओके, सो देयर आर 4 एरर्स. एक रेंज 10 नहीं 11, दूसरा है सेमीकोलन नहीं कोलोन, तीसरा है प्रिंट का p स्मॉल, चौथा है प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस. ओके, सो देयर आर 4 मिस्टेक्स एंड सी द नंबर ऑफ marks for them. Number of marks is 2. Okay, so this is how you have to calculate. 2 मार्क का है तो क्या मुझे 4 एरर्स मिले कि नहीं मिले? अगर 4 एरर्स मुझे नहीं मिले, 3 में मैं रुक गई तो फिर मैं कहीं ना कहीं छूट रही हूँ कुछ ना कुछ. ओके, समथिंग आई एम मिसिंग आउट समवेयर. ओके, एंड प्लीज बी केयरफुल. जब आप एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो, प्रिंट का p तो स्मॉल कर दिया, एवरेज का a स्मॉल मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे एवरेज का a कैपिटल है. Clear? Next, consider the following dictionary. DICT1 is equal to 1 colon Monday, comma 2 colon Tuesday. देखो यहाँ पे डबल कोट है, यहाँ पे सिंगल कोट है. ओके, उसके बाद 3 colon Wednesday, 4 Thursday, 5 Friday, 6 Saturday. Give a command to add a new element with key 7 and value Sunday and check whether key 0 exists in the dictionary or not. पहले मुझे ये बताओ how to add another key 7 with value Sunday. How do I do it? How to do it?
नो आंसर फ्रॉम एनीवन? कैसे पता नहीं है कि डिक्शनरी में एक एक्स्ट्रा कैसे डालना है? ओके, आई विल टेल द आंसर. फर्स्ट सी, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम क्या है? DICT1. ओके, यू आर एबल टू सी दिस DICT1. ओके, so how are you going to do it? Now I am posting the answer in the Teams chat. DICT1. ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में दो 7. He is 7, उसने बता दिया. वैल्यू क्या है उसका? संडे. ठीक है, दिस इज हाउ यू गिव इट. मैम अपडेट भी तो आएगा. कहाँ पे अपडेट आएगा? मैम ऐसे नहीं आता अपडेट, फिर DICT, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 7. इंसर्ट करने को कहा है ना. गिव अ कमांड टू add a new element with key 7 and value Sunday. ओके, पहले उसे adding a new element उसने कहा. उसने ये वर्ड यूज नहीं कहा to update the dictionary. Adding a new element, this is how you add your new element. DICT1 square bracket 7 is equal to Sunday. ओके मैम. ओके, फिर उसने क्या कहा? एंड चेक वेदर की 0 exists in the dictionary or not. Okay, you just have to check whether key 0 is existing in the dictionary or not. तो क्या आएगा उसके लिए? 0 in DICT1. इससे चेक नहीं हो जाएगा कि 0 is in dictionary 1 or not? अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा. Okay, now let us move on. Ronit has created a dictionary student having student name and roll numbers. As per the new guidelines, he needs to remove all the elements of the dictionary and redefine the key value pairs. Suggest an appropriate command to delete all the contents of a dictionary. उसने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर्स हैं. न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से ही हैज बीन आस्क्ड टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी. ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने का उसको मिला है गाइडलाइन, तो उसे डिलीट करना है. एंड रीडिफाइन द की वैल्यू पेयर्स, तो की वैल्यूज के पेयर्स को रीडिफाइन करना है. सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट कमांड टू डिलीट ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी. इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? पूरी डिक्शनरी को क्लियर करना है तो क्या है कमांड? अब देखो, डिक्शनरी का नाम उसने दे दिया है स्टूडेंट. ओके, सो द आंसर विल बी स्टूडेंट डॉट क्लियर और फिर पैरेंथेसिस स्टूडेंट डॉट क्लियर, तो सारे क्लियर हो जाएंगे. Next, write a program to enter names of n subjects
and their head teacher as input and store them in a dictionary. Take n as input from the user. कितने सब्जेक्ट्स हैं और उनके हेड टीचर्स क्या हैं वो यूजर देगा. This is somewhat like the program that you already have in your textbook, NCERT book, okay, जो कि है that is your employees and their details. Okay, so create an empty element right now. Okay, पहले एक empty dictionary create करो which is subject head is equal to DICT, फिर n is equal to and then take input int input and then enter the number of values you want. तो वो जो है वो बंदा खुद से बता देगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं उनके पास. For count in range n, for count in range n, then take subject is equal to और फिर subject को input ले लो, enter the name of the subject, फिर teacher is equal to input, enter the teacher's name, उस subject को कौन से teacher पढ़ाते हैं उसका उनका नाम आ जाएगा, then subject head, okay, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में सब्जेक्ट इज इक्वल टू टीचर. ओके, तो ये टीचर जो है उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हेड है. देन यू हैव टू प्रिंट सब्जेक्ट एंड देन टीचर. फिर जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने सब्जेक्ट हेड्स होंगे. ठीक है, तो उसके लिए एक काउंटर बना दो सब्जेक्ट हेड. मैम इसमें जैसे आपने सैलरी वाला मतलब रिलेट करके बोला है, हाँ, तो इसमें तो हेड मतलब इसमें हमें जैसे हमने उसमें सैलरी की थी कि एंटर योर सैलरी और उसके बाद हमने उसको कंडीशंस दी थी. तो इसमें अगर हम एन की अगर हम इनपुट में डालते हैं कि एंटर योर सब्जेक्ट्स, जो एन है तो एन इक्वल्स टू एंटर योर सब्जेक्ट्स, तो इसमें हम कंडीशन क्या देंगे? इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है. वहां पे कंडीशन बहुत सारे थे कि एज फार एज आई रिमेम्बर 50,000, हाँ, सैलरी के हिसाब से थे कंडीशंस. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. इनफैक्ट जैसे स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स की तरह ही है ये सब कुछ. ओके, जैसे हम लोगों ने एक और भी करा था स्टेट्स एंड कैपिटल्स, ये भी आपके पीछे के क्वेश्चंस में ही था. ओके, बिल्कुल वैसे ही है. सब्जेक्ट एंड देयर सब्जेक्ट हेड्स. Okay, you can take the screenshot. I'm going to share the answer with you. So subject head is equal to, okay, this is subject head is equal to DICT. This is an empty dictionary. Okay, this one is an empty dictionary. Then n is equal to int input, enter the number of values you want. तो कितने subjects हैं वो user enter करेगा. For count in range n, ये जब तक इस range में है. ठीक है, done. Subject is equal to input, enter the names of the subject. ठीक है, क्या क्या है names of the subject, उसका input आएगा. Teacher is equal to input, enter the names of the teacher. Teachers के names क्या हैं वो दे देंगे. फिर हम उससे ये बता रहे हैं कि ये जो डिक्शनरी है subject head, ठीक है, जो हमने blank डिक्शनरी क्रिएट किया है, ओके, इसमें key is subject, value is teacher. ठीक है, हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी जो क्रिएट किया है, इसमें की इज द सब्जेक्ट व्हिच हैज बीन इनपुटेड एंड वैल्यू इज द टीचर दैट हैज बीन इनपुटेड. उसको हमने ये कमांड से इतना बता दिया दैट दिस इज द की ऑफ दिस डिक्शनरी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी. फिर हमने कहा प्रिंट /n मतलब एंटर दबा देगा. ठीक है, सब्जेक्ट फिर एंटर टीचर. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है,
और टीचर का नाम क्या है वो दे देगा। इवन इफ यू डोंट गिव इट इन दिस वे, इफ यू गिव सब्जेक्ट कॉमा टीचर तो भी ठीक है, नो इश्यूज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट, प्रिंट आई इन सब्जेक्ट हेड, फॉर आई इन सब्जेक्ट हेड। तो ये जो सब्जेक्ट हेड है, ठीक है, उसमें जितने सब्जेक्ट्स और जितने टीचर्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और टीचर्स को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट आई कॉमा, ये टैब्स प्रेस करेगा, T/T, ओके, ये टैब प्रेस करेगा ताकि गैप आए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर में, ठीक है, सब्जेक्ट हेड आई, ठीक है, तो वो से आई टाइम्स काउंटर बना के वो प्रिंट करता जाएगा, सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर। ओके, तो इस सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का नाम आएगा, इस टीचर की जगह पे इस टीचर का नाम आएगा। कितने बार आएगा? फॉर आई, ये जितने दिए हैं उसने उतने तक आएगा। हमने एक अलग काउंटर बना के यहाँ पे उन सारों को प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। इवन इफ यू राइट टिल हियर कॉन्फिडेंटली, ओके, टिल हियर, ठीक है, यहां तक अगर आपने कॉन्फिडेंटली लिख दिया है, देन ऑल्सो आउट ऑफ 2 यू विल गेट 1.5 मार्क्स। इस चीज के लिए एट मैक्स हाफ मार्क ही आपका जाएगा। क्लियर? सी यस और नो एट लीस्ट। यस मैम। ओके, रीशेयरिंग द स्क्रीन। So the next one will be सेक्शन बी। अब तक 1 मार्क करके से छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट सेक्शन बी, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक व्हाइल डिस्कार्डिंग आवर ओल्ड ब्रोकन और माल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइस। जैसे सीडीज हो गए, डीवीडीज हो गए, या फिर हार्ड डिस्क हो गए, ओके, या फिर पेन ड्राइव्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके मोबाइल फोन्स हो गए, ओके। तो ये जब डिस्कार्ड करते हो, ठीक है, जो पुराने हो गए या फिर दे आर ब्रोकन और दे आर माल फंक्शनिंग, ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस जब डिस्कार्ड करते हो, जब किसी को बेच देते हो या फिर फेंक देते हो, ठीक है, तो किस टाइप के प्रिकॉशंस आपको लेने हैं? Number 1, break up the old broken device for resale or reuse. Number 2, recover gold and other precious metals for recycling. Number 3, using proper tools to delete or shred stored data, use its working parts. क्या करना है? इनमें से प्रिकॉशन किसका है? प्रिकॉशन मतलब it's like safeguarding before something else is done. Okay, so breaking up the old broken device for resale, नहीं, ये नहीं करना हमें, not this. Recover gold and other precious metals for recycling, that is not a precaution. That can be done, it is not a precaution. Ma'am, Okay. using proper tools to delete or shred the stored data. Yes, absolutely right. So सबसे पहले हमें ये चीज करना है कि फोन से या पेन ड्राइव से या पुराने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से या फिर हार्ड डिस्क से या फिर पेन ड्राइव से, सीडीज डीवीडी से जितना डेटा है, या तो उन्हें आप कहीं और निकाल के स्टोर कर लो और उसमें से डिलीट कर दो, या फिर डेटा को पूरी तरीके से डिलीट मार दो अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी है कहीं पे, ठीक है। डेटा कभी किसी के हाथ में जाना नहीं चाहिए। ओके, सो यूज अप्रोप्रिएट टूल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डिलीट मार दिया, वो रिसाइकल बिन में कहीं पे रखा है, ठीक है, पासवर्ड्स वगैरह सेव्ड रहते हैं तो इन सबको डिलीट मारो। फैक्ट्री रीसेट करो, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी एक बार क्रोम वगैरह हर जगह पे जाओ, वहाँ पे भी चेक करो कि ढंग से वहाँ से सब कुछ गया है कि नहीं। ओके, developers of some softwares allow the public to freely use their software along with source code with an aim to improve further with each other's help. Name this software. किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये? बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है
आई मीन ओपन सोर्स है या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब पेड वर्जन है। किसमें होता है जहाँ पे सोर्स कोड भी दे देता है वो आपको, और आप उसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। मैम ओपन सोर्स Yes, it सॉफ्टवेयर। is open source software. So this type of software is open source software. Okay. Next, differentiate between append and extend method of lists. मैम एक्सटेंड में इट विल बिकम लाइक अ नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाएगी, और एपेंड में एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। Only that much? Append and extend. Append क्या करता है, कहाँ पे एक नए लिस्ट, दोनों ही नए लिस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। Append कहाँ पे ऐड करता है, extend कहाँ पे ऐड करता है। Append में क्या हम लिस्ट के अंदर एक दूसरा लिस्ट डाल सकते हैं, extend में क्या हम एक लिस्ट के साथ दूसरा लिस्ट डाल सकते हैं। मैम अपेंड में हम लोग मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट डाल सकते हैं, बट एक्सटेंड में नहीं डाल सकते हम। Appends, yes. So append में actually single element as an argument हम डाल सकते हैं at the end of a list, ठीक है। हम लिस्ट के साथ एक दूसरा लिस्ट भी डाल सकते हैं, ओके डन। either one extra element at the end of the list या फिर an extra list within the list, ठीक है, ओके। मैम whereas in extend, हाँ मैम whereas in extend हम लोग सिर्फ एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे लिस्ट 1 है हमारे पास और जो लिस्ट 2 है, तो हम लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड करके लिस्ट मतलब फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट 2, तो वो पूरी प्रिंट हो जाएगी लिस्ट 1 में। yes. मतलब दोनों को कंबाइन कर देती है। Absolutely right. एक्सटेंड में हम एक लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 कर सकते हैं, which becomes the your appending. That means adding another list to the first list, that is extending. Whereas in append you can add another single element to the end of the list, or you can add even another list to a list, okay. You have to explain this with the help of an example, okay. I'll show you one example in the chat box itself. Say suppose list 1 is equal to, okay, you have 10, 20, 30, 40, okay. Then I have list 1 dot append, okay, and I try to append something to it. पहले हम एक करते हैं एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, फिर हम ये भी कर सकते हैं, हम सिंगल एक लिस्ट को भी दे सकते हैं, ओके। सो सिंगल एलिमेंट अगर अपेंड करना है, ओके, सो आई विल गिव इट एज अपेंड एंड देन आई विल गिव 50, ओके, या फिर लिस्ट 1 डॉट अपेंड, ओके, और फिर हम लोग उसमें दे सकते हैं अ लिस्ट। लिस्ट कैसे देंगे, विथ अ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज 60, 70, ओके। whereas एक्सटेंड कैसे यूज होता है, लिस्ट 2 एक होना चाहिए, लिस्ट 2 इज इक्वल टू 50, 60, 70, ओके। तो हम कर सकते हैं ऐसा, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, ओके। तो ये हो जाता है एक्सटेंड। सो whenever you are giving such answers you have to give it with example, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है हम सोचते कुछ और हैं लेकिन लिखते वक्त प्रेजेंटेशंस में प्रॉब्लम हो जाती है। वट एवर वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है। सो वेन एवर देर इज़ अ लैंग्वेज इश्यू
always trust programming. Okay, so your program will be your savior. वो आपके बचाव के लिए आ जाएगा. Okay, it will help you to get saved. Huh? Now the next question. Find the output of the following Python code snippet. str is equal to welcome to the garden. Okay, उसके बाद वो कह रहा है print str 8 into 3 /2. डबल स्लैश मतलब फ्लोर डिवीजन. ओके, डबल स्लैशेस फ्लोर डिवीजन. ठीक है, मतलब क्या आएगा? सिर्फ क्वोशंट ही आएगा. इज इट? एम आई राइट? Am I right? Ma'am, can you please repeat once again? मैंने कहा सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में क्या डिफरेंस है? सिंगल स्लैश मतलब डिवाइड करेगा, डबल स्लैश क्या करेगा? सिक्स डबल स्लैश. मैम फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन मतलब क्या है? सिक्स डबल स्लैश 2 क्या आएगा आउटपुट? पिछले साल पढ़ा था, है ना? I'm saying 6 डबल स्लैश 2 क्या आएगा आउटपुट? What is going to be given in the output? चलिए इसका आउटपुट बताओ. str is equal to welcome to the garden. उसके बाद print str 8 into 3 डबल स्लैश 2. वरुण, give the answer. मैम जो फ्लोर डिवीजन में क्वेश्चन आता है आंसर में, तो 3 फ्लोर डिवीजन 2 है, तो इसका क्वेश्चन आएगा जो. एक सेकेंड, उसको छोड़ो, इसका स्ट्रिंग का मुझे बताओ. वरुण, give me the answer. नहीं आ रहा. आकाश, Akash, give the answer. str is equal to welcome to the garden. Print str 8 into 3 double slash 2. What will be the answer? मैम वेलकम टू द गार्डन और उसके बाद हम लोग 8 into 3 फ्लोर डिवीजन 2 को सॉल्व करेंगे. हाँ, पहले 8 into 3 कितना होता है? 8 3 24. 8 3 is 24. 20. और मैम क्वेश्चन 12 आए हैं, मतलब इसको सॉल्व करके 12 आया तो आंसर होगा वेलकम टू द गार्डन 12. नहीं, आहा, वो पूछ रहा है प्रिंट str 12. 12th पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग किसका है? किस अल्फाबेट का है? W is in 0, E 1, L is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, मैम G 8, 9, 10, 11 and then 12. G तक कहाँ चली गई? H है. H is the answer. 12th position is H. H is the answer. G कैसे हो गया? वो 13, 14, 15 हो रहा है G. स्पेसेस को भी काउंट करो ना. स्पेसेस को बिना काउंट किए सिर्फ अल्फाबेट को. स्पेसेस को नहीं किया काउंट.
हाँ, क्यों नहीं किया? घर में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रही हैं? वंडर वुमन बन के उड़ रही हो? हाँ, डोंट डू सच अ थिंग। नाउ कैसे आया 12? कैसे आया? 8 इंटू 3, 8 3 24। 24 /2 मतलब फ्लोर डिवीजन, मतलब सिर्फ कोशेंट को हम लेंगे। रिमाइंडर वैसे तो इसमें 0 आ ही रहा है, परफेक्टली डिविजिबल है, लेकिन फिर भी अगर परफेक्टली डिविजिबल भी नहीं होता तो भी हम सिर्फ कोशेंट को ही लेते। सो 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12। ठीक है, तो STR12 स्क्वायर ब्रैकेट STR12। STR12 क्या है? हमेशा स्ट्रिंग 0 से काउंट स्टार्ट होता है। ठीक है, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस, 8 9 10 स्पेस, 11 12 12 is H। सो प्रिंट STR12, तो आउटपुट में क्या आएगा? H आएगा। थोड़ा सा रॉकेट साइंस बना के रखा हुआ है इसको, राइट? नाउ इज इट क्लियर? अब वरुण ठीक है, समझ में आया? मैम H इज द आंसर। आकाश अब समझ में आया? एटलीस्ट हाँ ना कुछ तो बोलो प्लीज। एटलीस्ट आई डिजर्व सच एन आंसर। हाँ राइट। कशिश कुछ समझ में आया अभी? डोंट आई डिजर्व अ येस और नो फ्रॉम यू? ओके, भुवेश आया समझ में? भुवेश अनम्यूट तो किए हो लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, let me proceed now. Predict the output of the following question. For I in range 3, 15, if I मॉड्यूलस सिंबल, ये रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर ही बोल के पढ़ो तो हमेशा याद रहेगा। आई रिमाइंडर 2 मतलब आई को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर इफ इट इज डबल इक्वल टू 0 मतलब परफेक्टली इक्वल टू 0, प्रिंट आई कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस। क्या आएगा इसमें? मतलब ये आई इक्वल टू एंड, आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस मतलब हम हर नंबर के बाद एक स्पेस आ रहा है। ओके, तो बिना स्पेस के मत लिख देना, और एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर मत लिखना क्योंकि यहाँ पे स्लैशन कहीं नहीं दिया गया। एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर नहीं आएगा, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आएगा, मतलब इन अ सिंगल रो, और वो भी स्पेस के साथ। ठीक है, एक नंबर और दूसरे नंबर में स्पेसेस रहेंगे। ओके, सिंगल स्पेस। 3 से लेकर 15 वो नंबर्स, मतलब 3 to 15 वो नंबर्स जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल हैं, जिनका रिमाइंडर 0 है। इतना बस आउटपुट में आने वाला है। 3 क्या आएगा आउटपुट में? नहीं, तो क्या आएगा? 4 6 8 10 12 14। मतलब ये इवन नंबर्स का है, बस इतना ही है उस क्वेश्चन में। Okay, and see such a stupid concept and you have 3 marks for this. मैं तो सोच ही रही थी, मैं अगर क्वेश्चन पेपर बनाती तो मैं इसको 1 मार्क का दे देती बस। मतलब 2 मार्क ऐसे ही मुफ्त में मिल रहे हैं। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कौन से वो नंबर्स हैं जो परफेक्टली डिविजिबल हैं बाय 2, जिनका रिमाइंडर 0 आता है। ओके, बस इतना ही करना है। तो 4 5 4 6 8 10 12 14 तक बंद कर देना क्योंकि 15 से पहले रुक जाएगा। बस that's it, very simple, utter simple, and you get 3 marks. ऐसा लग रहा है मार्क्स की बारिश हो रही है। नेक्स्ट, राइट कोड इन पाइथन टू एक्सेप्ट 7 values from the user in a list. 7 values from the user in a list आपको एक्सेप्ट करवाना है। सॉर्ट द लिस्ट, ठीक है, दूसरा काम क्या करना है? सॉर्ट द लिस्ट एंड डिस्प्ले द मिड वैल्यू ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, 7 नंबर्स हैं, मतलब 3 नंबर्स के बाद, मतलब 4th नंबर हमेशा मिड वैल्यू रहेगा। ठीक है,
फोर्थ वैल्यू हमेशा मिड नंबर रहेगा। देखो इसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 अगर है तो फोर्थ वैल्यू हमेशा मिड नंबर रह रहा है, ठीक है, फोर्थ वैल्यू, फोर्थ एलिमेंट। ओके, तो अब बस इसके लिए पाइथन कोड लिखो, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। लिख दो लिस्ट 1 इज मैम इक्वल, हाँ जैसे ये लिस्ट 1 है, मतलब अगर हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें इन्होंने बोला है कि सॉर्ट करना। अगर ये शफल होते तो सॉर्ट में अगर हम नॉर्मल सॉर्ट की अगर स्टेटमेंट यूज करते कि लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट फिर पैरेंथेसिस करके, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। हाँ राइट राइट उसके राइट। बाद हाँ, हाँ तो उसके बाद उसमें मिड वैल्यू उसकी कैसे फाइंड करेंगे, मतलब सीधा इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे कि हमें फोर्थ टर्म चाहिए। देखो, या तो फोर्थ टर्म डालने का डाल दो, या फिर उस लिस्ट को फ्लोर डिवीजन कर दो बाय 2, उसका लेंथ निकाल दो, ठीक है, उस लेंथ को फ्लोर डिवीजन कर दो बाय 2। फिर तो मैम हमें जैसे फाइंड से भी कर सकते हैं ना इसमें, फाइंड से भी कर सकते हो। कि लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स और फिर बिल्कुल, पैरेंथेसिस में डाल के। फाइंड और फिर फोर्थ एलिमेंट दे देना, क्योंकि 7 ही है तो डेफिनेटली सॉर्ट होने के बाद फोर्थ इंडेक्स ही, मतलब फोर्थ एलिमेंट ही रहेगा, मतलब 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स या फिर फोर्थ एलिमेंट वही रहेगा। तो इसके ढेर सारे तरीके हैं, या तो फाइंड करा दो, या इंडेक्स से निकाल दो, या फिर नॉर्मल एलिमेंट से निकाल दो, ठीक है, या फिर इसको लेंथ निकालो, लेंथ को डिवाइड कर दो बाय 2, ठीक है, उसमें से उसका क्वोशंट निकाल दो, क्योंकि 7 है ना, 7 फ्लोर डिवीजन 2 किया है तो 2 3 6, ठीक है, तो 3 आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो 0 1 2 3 थर्ड वाले इंडेक्स को वो निकाल देगा, तो मतलब ऑटोमेटिकली फोर्थ एलिमेंट निकल गया हमारा। यस मैम। ठीक है, तो तरीके हैं, बस तुम्हारी मर्जी, जैसे भी निकालो। Okay, so the other questions will solve tomorrow. Okay, यहाँ से ई बिट से हम लोग कल सॉल्व करेंगे। E is वैसे भी it's quite easy, so do try this one also. Okay, so thank you everyone. अच्छा, कल से आप लोगों के ये है ना, दैट इज असेसमेंट, तो कल आकाश और आरुषि का फर्स्ट है। ओके, सो आकाश एंड आरुषि बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो, इंडिविजुअली आपको अपने अपने प्रेजेंटेशंस देना। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने मेरे को अनन्या को जो बोला है, तो अभी तो अनन्या है नहीं, तो मैं उसको बता दूंगी। तो जो मतलब वीडियोस डालने, वो वीडियोस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, मतलब वो ना क्या कहते हैं, डाउनलोड वाले सिस्टम से हट गई है। रीसेंट तो वाली डाल, जितने रीसेंट। रीसेंट, यस मैम, जैसे अभी कल की और आज की, हाँ और यार, उससे मतलब जो अवेलेबल होंगी। हाँ हाँ, ओके मैम। ठीक है, और ब्लॉग्स वाला मेनली कर देना, ठीक है। मैम मैम वो ब्लॉग वाला मुझे आता नहीं है, वो मैं अनन्या को बोल दूंगी तो वो कर हाँ देगी। हाँ हाँ, ठीक है, डन डन, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम।